Let's take example, the pandemic that made this conference online. The virus that originated in Wuhan happened to be in a bat and then transferred to humans and then spread so quickly across the globe because of environmental factors. This is the problem, that health and disease of humans depend upon environment surrounding it. So the solution is One Health concept. What is One Health concept? It is achieving optimal health by treating humans, animals, plants in their shared environment by coordination of different sectors. Like in this pandemic, everyone from all walks of life come together to decrease the impact of pandemic. This is how One Health concept works in public health. The discussion on mythology in public health is particularly relevant in a country like India, where the average man relies on home remedies based on myths, unless it is absolutely necessary to visit a hospital. The role of mythology in molding popular public opinion can be attributed to, firstly, the fact that its outreach to the masses is unparalleled. For example, even the most relentless ad campaigns by toothpaste brands may not reach the uninitiated villagers. They may not have heard the phrase, "Kya aapke toothpaste mein namak hai?" But they still maintain dental hygiene using neem twigs because its knowledge has been passed from the Vedas and through the generations to everyone. Secondly, trust. Mythological beliefs are so widely accepted as true that you can get better compliance to drinking cow urine from your patient than to anti-tubercular drugs. This is where we need to be careful. Correcting myths that have been considered indubitable in society since generations is a Herculean task. From convincing a mother not to feed her newborn child gutki, to addressing the public's widespread refusal to build toilets in their house due to its proximity to the kitchen, mythology will continue to influence public health. It is the job of the medical community to delicately present to the public both good and bad implications of such beliefs. Thank you. I was 15. Worlds of smoke rose from father's lips, but my first smoke felt like long whips. Yet routine, ritual, habit it became, and life would never be the same. I continued. They, the heroes, took the puff, and I bought it on the cuff. It seemed cool, till I knew I was made a fool. I smoked. I was 20. Colleagues with teeth stained red. Try it, they said. Red stains, pan and gutka stains, tobacco stains. And alas, it brought all these pains. I chewed. Bitter it tasted, and my money was wasted. Yet I spat out red, until the day I spat out blood. I bled. I understood. Importance of life's most is realized not till it's lost. People, time, money, love, air. No, this isn't fair, I gasped. Every breath a struggle. Machines giving all oxygen they could smuggle. Now it's too late.
to create a new slate. I knew. I left. A warning note to my son I wrote. Slow death, painful death, breathless death. This tobacco steals your breath. I cried. Little packets of lies, your pocketed rice. To life I bow, thanks to tobacco, I died. Hello everyone, I am Dr. Vivek Sagar. I am Assistant Professor at Community Medicine, School of Public Health, PGMR, Chandigarh. I am presenting here my few lines to promote guidelines of social distancing, specifically mask adherence. This creation has got recognition in Jan Andolan competition, where I had submitted this as a written draft. Now I am upgrading it by giving it my voice and expression so that I can convince people in better way to follow COVID guidelines. If I could able to convince at least 10 people, I will be happy. The title of my creation is Mask आज का कीमती गहना. मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है जिसे पहने सब, बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है. कोविड जैसी महामारी से गर दूर रहना है तो मास्क पहन हाथ धो के 2 गज की दूरी को भी सहना है. मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है जिसे पहने सब, बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है. बदल गया है जमाना थोड़ा जनाब, बदल गया है जमाना थोड़ा जनाब. दिल से हैं पास लेकिन जमघट या पार्टी को फिलहाल दूर दूर से ही हेलो या बाय बाय कहना है. मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है जिसे पहने सब, बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है. वैक्सीन भी आज आ गई है मेरे दोस्त, वैक्सीन भी आ गई है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी आईने में देखो जाके हर रोज. वैक्सीन भी आ गई है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी आईने में जाके देखो हर रोज कि मास्क मैंने अच्छे से पहना है. मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है जिसे पहने सब, बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है. थोड़ी सी असुविधा है मास्क में हम मानते हैं, थोड़ी सी असुविधा होती है मास्क में हम मानते हैं, लेकिन लापरवाही दिखा ऐसे सस्ते में तो मरते नहीं रहना है. थोड़ी सी असुविधा है मास्क में हम मानते हैं, थोड़ी सी असुविधा है मास्क में हम मानते हैं, लेकिन लापरवाही दिखा ऐसे सस्ते में तो मरते नहीं रहना है. मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है जिसे पहने सब, बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है. कर रहे हैं गुजारिश आपके भले के ही लिए, कर रहे हैं गुजारिश सब आपके भले के ही लिए, तो ऐंठ में आके ऐसे इतने असावधान क्यों रहना है. कर रहे हैं गुजारिश सब आपके भले के ही लिए, तो ऐसे ऐंठ में इतने असावधान क्यों रहना है. मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है जिसे पहने सब, बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है. माना तुम फिलहाल स्वस्थ हो सबकी दुआ से, माना तुम फिलहाल स्वस्थ हो सबकी दुआ से, लेकिन घमंड करने से पहले अस्पताल में जाके देखो. माना फिलहाल स्वस्थ हो तुम सबकी दुआ से, लेकिन घमंड करने से पहले अस्पताल में जाके देखो. एक मरीज से लेके फ्रंट लाइन वर्कर्स को पड़ता क्या क्या सहना है. मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है जिसे पहने सब, बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है.
थोड़ी सी तो उम्मीद की है आपसे सबके भले के ही लिए, थोड़ी सी तो उम्मीद की है आपसे सबके भले के ही लिए। इलाज से परहेज बेहतर, इलाज से परहेज बेहतर, बरसों से सबका ये कहना है। मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है, जिसे पहने सब बच्चा बूढ़ा चाहे बहना है। करनी होंगी ये चंद बातें अपनी जीवन शैली में शामिल, करनी होंगी ये चंद बातें अपने जीवन शैली में शामिल। मास्क, हाथ की सफाई, 2 गज की दूरी एवं योग और व्यायाम। करनी होंगी ये चंद बातें अपनी जीवन शैली में शामिल। मास्क, हाथ की सफाई, 2 गज की दूरी एवं योग एवं व्यायाम। अगर कोविड जैसी महामारी को जल्दी जल्दी गुड बाय कहना है, मास्क बन गया तन का एक जरूरी गहना है, जिसे पहने सब बच्चा बूढ़ा चाहे भैया या बहना है। धन्यवाद। आज की इस दुनिया में लोग क्या कहेंगे पे बहुत जोर है। ये कुछ और नहीं, हमारी अंदर की अस्थिरता का शोर है। मैं ये नहीं कह रही कि सहमति है नहीं ज़रूरी, पर तब तक ही जब तक वो बन ना जाए एक मजबूरी। बाल अवस्था, किशोर अवस्था और फिर प्रौढ़ अवस्था, हमेशा दूसरों ने ही की है हमारी भावनाओं की व्यवस्था। दूसरे की राय सुनकर तो 10 कदम की दूरी को 20 कदम में तय किया। विचारों का इतना बोझ हमने अपने ऊपर व्यर्थ ही लिया। तुम्हारा तन, मन, धन और विचार
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इनको पूरा कैसे करना है ये कर्तव्य भी तुम्हारा है। अपनी मर्यादा आप खुद ही तय कीजिए, पर दूसरे क्या करते हैं उस पे टिप्पणी मत कीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है छोटे विचार रखने के लिए, इसलिए बड़े विचार रखें इसका मजा चखने के लिए। दूसरा अपना सही गलत खुद ही सोच लेगा, आप अपने पे समय दीजिए, वो ज़्यादा लाभ देगा। आलोचना और मजाक में फ़र्क समझिए, बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। निष्पक्ष रहना एक गुण है बड़ा, जीवन में आए कई नकारात्मक विचारों से यह है लड़ा। एक दूसरे को जीवन में बढ़ाइए आगे, फिर देखिए कैसे जुड़ते हैं ये सुनहरे धागे। तर्क वितर्क करना गलत नहीं, पर दूसरों की भावनाओं को दबाना भी सही नहीं। जो आपका सच है वो दूसरे का झूठ हो सकता है, इसलिए दूसरे की सोच को इज्जत देने से बहुत फर्क पड़ सकता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, इस समय किसी को ये ना बोलिए कि देश जल रहा है और तुम हंस रहे हो, कि देश जल रहा है और तुम हंस रहे हो, क्योंकि याद रखिए इसी हंसी को बरकरार रखने में आंसू उन्होंने भी बहाए हैं। इसी हंसी को बरकरार रखने के लिए आंसू उन्होंने भी बहाए हैं, क्योंकि हंसी तो बस चेहरे पे है, अंदर सबके लिए दुआएं हैं, सबके लिए दुआएं हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो। इसी तरह मैं अगले हफ्ते फिर एक नई कविता लेकर आप सबके सामने आऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट। In Sanskrit, it is a very well-known saying of Vasudhaiv Kutumbakam. That means the whole world is a family. In the era of non-communicable diseases, family plays an important role from where our primordial level of prevention starts, that is lifestyle modification and health education. Family is a social, epidemiological and cultural unit. Family is the first place from where we learn. Family plays a very important role in maintaining the mental health also. Family is the first place from where our behavioral communicational changes can start. Family is the place from where we grow and we develop, and what all cultural beliefs we see in the family, it leaves an impact on us also. Family is important in public health because in the era of non-communicable diseases, family medicine is another branch from where we are on which we are concentrating for a family. If we concentrate on family, we can reduce these diseases. Family is very important. The poem goes like this. The first wave of COVID-19 at the beginning of pandemic terrified us to live each moment in panic. In days, it reached the crest, although we tried our best. Lost in the unknown quest, then started hiding in our nest. It was just to console the lost soul, like someone denied after playing fall. What scared us most, standing close to anyone in a row, seeing the mask lie on the jaw, disobeying the hand washing law. A breath of relief when we flew off the cage. Cases were low, post peak, so is our inner sage. Sad, we took it for granted. A wicked witch enchanted. Our path again got haunted. We did everything unwanted. Before we celebrate came the second wave, reminding the forgotten lesson we have. Things will never remain same. Nature will find ways to tame. We humans are just a name. She's the one playing all the games. What we can do is abide by the rules, understand the dark side of the jewel. Living with it is not a choice but very essential. Needs contribution which must be substantial to fight the crisis that could be of existential, to avoid the waves which could be exponential. Make physical distancing a norm, hand washing to kill all the germs, wear the mask and do not roam.
practice social solidarity to deal with the storm. Thank you so much. Lucknow, the land of Nawabs, sits right in the heart of Uttar Pradesh, India. It enchants our eyes with royal charm, which extends to the picturesque green villages. Lives in these villages have improved with construction of free toilets under the Swachh Bharat Abhiyan, the Clean India Mission. India was declared open defecation free in October 2019. But during our fieldwork, we found a hidden dimension of sanitation in these villages: unsafe child feces disposal. So we decided to look more into this matter. मान घर में बच्चे ने टट्टी कर दिया, अब उठा करके कहीं किसी गंदी जगह पर उन्होंने छोड़ दिया। तालों में फेंकते हैं, कूड़ा में फेंकते हैं, डस्टबिन में बाहर डालते हैं। और जो बच्चे के ड्राइवर है वो अभी भी पेपर में लपेट के ये लोग में नहीं डालती हैं। क्या आपके घर में शौचालय है? आप बच्चों का मल कहाँ पर फेंकते हैं? कहते ही जाते हैं बाहर भी। अच्छा, इनको जब टॉयलेट कराना होता है बच्चे को तो आप कहाँ पे कराते हैं? ये डायपर पहने रहता है, वो पन्नी में करके बाग में डलवा देते हैं और फिर जैसे ऐसे कर देता है पॉटी वोटी तो नाली में पानी बहता है, नाली में डाल देते हैं। According to the World Health Organization, a child's stool is considered to be disposed safely when the child uses the latrine or the feces is put or rinsed into the latrine or buried. Unsafe disposal is harmful because children's fecal matter is a source of contamination because they are prone to many pathogens while crawling, playing, etc. Many infections like diarrhea, hepatitis A and D, typhoid, polio, and worm infestations can be transmitted. Repeated infections lead to reduced immunity and damage to intestinal cells. This leads to reduced absorption of nutrients, leading to stunting and poor brain growth. This in turn leads to a vicious cycle of malnutrition and poor performance in life. Breaking the fecal-oral disease transmission cycle is important to reduce the under 5 mortality. We tried to find the reason behind this unsafe practice. इनका टॉयलेट क्या लगता है आपको? क्या इतना कीटाणुजनक होता है कि होता है मतलब कम जी, क्योंकि अभी दूध पीता है। Some were even shocked. इतने जागरूक तो है नहीं, इतना जागरूक नहीं, इतना प्रचार प्रसार नहीं है। अभी उनको हैबिट में नहीं लिया गया है, इससे इन्फेक्शन भी बढ़ता है, लेकिन मोटिवेट कर रहे हैं लोग लेडीजों को। Realizing the need for awareness, a campaign was started promoting children's health via safe excreta disposal, or in short CHE, for the term chi used by mothers to indicate a wrongdoing by their children. Focus group discussions were conducted and mothers were taught to dispose their children's fecal matter in a safe manner in latrines, and in case diapers were used, to cover it and throw in closed dustbins. This campaign started with one village and is now extending to many others. Ashas, the community health workers, have been advised to reinforce this good practice during village health, sanitation and nutrition days and also immunization sessions. Safe disposal of children's feces along with hand hygiene and safe drinking water will improve nutritional status and health of our children. This campaign is a small step, a tiny drop in a large ocean, but perhaps this can form a tide that can wash away malnutrition and suffering. स्वच्छता ही सेहत
किसानी है। कोविड-19 के दौरान वेक्टर या मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां। यह संकट का समय है और हम सभी कोरोना की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हालांकि यह जानना महत्वपूर्ण है कि हर बुखार कोरोना के कारण नहीं होता। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां भारत में हमेशा से ही स्थानिक रही हैं। इनमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। तो हमें इन बीमारियों का खतरा क्यों है? कोरोना रोकथाम पर अधिकतर ध्यान केंद्रित करना, वेक्टर बॉर्न बीमारियों के बारे में ज्ञान न होना, बारिश का मौसम एवं तापमान में उतार चढ़ाव इन बीमारियों के ज्यादा फैलने का कारण बन सकते हैं। भारत की 80% आबादी मलेरिया के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। पिछले साल इनके 3 लाख से अधिक मामले थे। वहीं डेंगू से हर साल 1.5 से 2 लाख एवं चिकनगुनिया से 50,000 लोग संक्रमित होते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं इन बीमारियों में? मलेरिया में ठंड लग के बुखार आता है। इसके अलावा सर दर्द, बदन दर्द और जाड़ा भी होता है। वहीं डेंगू के बुखार में सारे शरीर में टूटने का एहसास और आंखों के हिलने पर दर्द होता है। वहीं चिकनगुनिया में बुखार के साथ जोड़ों में तेज दर्द होता है। मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है जो प्रदूषित जल निकायों में पनपता है और रात के दौरान काटता है। जबकि डेंगू और चिकनगुनिया ईडीज मच्छर से होता है जो घर में एकत्रित हुए साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। तो इन मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को कैसे रोका जाए? आइए जानें मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव के कुछ और तरीके। मच्छर मारक एवं मच्छर से बचाने वाली क्रीम का उपयोग करें। मच्छरदानी का उपयोग करें। पानी की टंकियों, बड़े कंटेनरों को ढक कर रखें। कूलर और फूलदानों का पानी बदलते रहें। वह अपशिष्ट पदार्थ जिनमें पानी जमा हो सकता है, उनका निपटान करें। फुल स्लीव कपड़े पहनें।
नमस्कार, मी एकता कम्युनिटी FM रेडिओतर्फे आपल्या सर्वांचे सामुदायिक हितार्थ जनजागृती कार्यक्रमात सहर्ष स्वागत करीत आहे. व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडियाद्वारे चुकीचे संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचविले जातात. त्यांना कसे ओळखायचे त्याविषयी माहिती प्रस्तुत करीत आहे. व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडियाद्वारे आपल्यापर्यंत चुकीच्या औषधी उपचारांविषयी माहिती पोहोचविली जात आहे. ही माहिती खरी आहे किंवा नाही हे बघण्याकरिता काही शासनाद्वारे मंजूर असलेल्या साईटवर जाऊन बघू शकता. उदाहरणार्थ, आयुर्वेदिक औषधीची खरी माहिती जाणून घ्यायची असेल तर आयुष मंत्रालय लिंकवर जा, किंवा ॲलोपॅथिक औषधीविषयी खरी माहिती जाणून घ्यायची असेल तर शासनमान्य लिंकवर जाऊन माहिती काढा व त्यानंतर विश्वास ठेवा. शक्य असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. व्हॉट्सअपवर येणारी चुकीची माहिती फॉरवर्ड करू नका. आता आपण कोरोना होण्यापूर्वी कसे वाचू शकतो हे जाणून घेऊया. आतापर्यंत कोरोनावर लस आलेली नाही, म्हणून या गोष्टीचे कटाक्षपणे पालन करा. 2 फुटाचे अंतर, नाकातोंडाला मास्क लावणे, वारंवार साबणाने हात धुणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. कोरोनाबद्दल लोकांच्या मनात असलेले काही गैरसमज जाणून घेऊया. लोकांच्या मनात कोरोनाविषयीची भीती निर्माण झालेली आहे. ती अशी की कोणत्याही आजाराकरिता दवाखान्यामध्ये गेले की कोरोनाची टेस्ट करून पॉझिटिव्ह दाखवतात. त्यामुळे दवाखान्याला फायदाच होतो व त्या पॉझिटिव्ह पेशंटमागे भरपूर दवाखान्याला पैसे मिळतात, असा गैरसमज लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. या भीतीने लोक दवाखान्यात जात नाहीत. हा गैरसमज चुकीचा आहे. त्यामुळे आजाराचे प्रमाण जास्त वाढतच चालले आहे. या आजाराची लक्षणे बघूया. सर्दी, खोकला, ताप, थकवा येणे, तोंडाची चव जाणे आणि वास न येणे ही लक्षणे दिसल्यास उपचार घ्यायला वेळ लावतात. तर माझी ही नम्र विनंती आहे की यातील कुठलीही लक्षणे दिसल्यास त्वरित दवाखान्यात उपचार घ्यावा आणि कोरोनाची तपासणी करून घ्यावी. तरच आपण कोरोनाची लढाई जिंकू शकतो. ही तपासणी सरकारी दवाखान्यात निशुल्क आहे. आता दिवाळीला सुरुवात होईल तेव्हा सुना किंवा मुली आपल्या माहेरी येणे जाणे करतील, तर त्यांना संदेश देण्याकरिता एक गीत सादर करीत आहे. तोंडाला मास्क लाव ग सुनबाई, मग जा आपल्या माहेरा माहेरा. तोंडाला मास्क लावलं ग सासूबाई, आता तरी जाऊ द्या ना जाऊ द्या ना. साबणाने हात धुव ग सुनबाई, मग जा आपल्या माहेरा माहेरा. साबणाने हात धुतले ग सासूबाई, आता तरी जाऊ द्या ना जाऊ द्या ना. कोरोनाची लस येऊ दे ग सुनबाई, मग जा आपल्या माहेरा माहेरा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारत एक ऐसा देश जहाँ पेट्स को जानवर नहीं बल्कि घर का सदस्य समझा जाता है, और शायद इसीलिए हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वो कब हमें चाट रहे हैं, कब एग्रेसिव हो रहे हैं, कब काट रहे हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते और अंजाम ये होता है रेबीज, एक दर्दनाक दास्तां। हर साल इंडिया में 20,000 डेथ्स रेबीज के कारण होती हैं, और इस लॉकडाउन में जानवरों को फॉस्टर करना, उन्हें अडॉप्ट करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो आइए हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं। मिलिए मिस्टर दुबे, मिसेस दुबे और बंटी से। आभा, जरा चाय ले आइए। अरे बंटी, बेटा आप आ गए? ये क्या लेके आ गए आप अपने साथ? पापा मुझे पपी रखना है पापा, प्लीज। पापा ये दौड़ रहा था मेरे पीछे पीछे, प्लीज मैं इसको रख लूं क्या? प्लीज प्लीज पापा। आभा, आइए देखिए बंटी क्या लाए हैं। अरे अब क्या हो गया? मम्मी प्लीज पापा को बोलो ना, प्लीज मम्मी, प्लीज पापा को बोल दो ना कि इसको मैं रख लूं प्लीज, वरना इसको कोई गाड़ी ठोक जाएगी। प्लीज, कितना क्यूट है ये, देखो प्लीज प्लीज। बंटी क्या है ये? मना किया था ना कोई डॉग्स अंदर नहीं आने चाहिए, रेबीज हो जाता है इससे। एक बार हो गया ना, बहुत सारे इंजेक्शंस लगेंगे। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, जल्दी वापस करके आओ जहां से लाए। बेटा मम्मी सही बोल रही है, इसे छोड़ आइए। तो क्या बंटी अब पपी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा? लेकिन बंटी को तो यह बात पहले से पता थी।
कि उसके मम्मी पापा ज़रूर मना कर देंगे, इसलिए उसने अपने अंकल आंटी मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को बुला लिया था। अरे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, आइए आइए। बंटी ने हमें बताया था मिसेस दुबे, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ। रेबीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मतलब इसके इनिशियल सिम्टम्स बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बुखार, दस्त, उल्टी, थकान, सर दर्द, पर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली जाती है। मतलब बंदा बेचैन होने लगता है, हेलुसिनेशंस, इवन पैरालिसिस तक हो जाता है, और लास्ट स्टेजेस में हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, यानी कि ही इज इवन अनेबल टू स्वॉलो, दौरे पड़ने लगते हैं विदिन 10 days, एंड देन डेथ। और अगर किसी डॉग को रेबीज हो जाता है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं, बहुत अग्रेसिव सा हो जाता है, वो सबको काटने दौड़ता है। और रेबीज सिर्फ डॉग से नहीं होता है, किसी भी मैमल से हो सकता है, कैट, बैट्स, फॉक्सेस, किसी भी मैमल से। और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मौतें इतनी ज्यादा होती हैं। हाँ आंटी, मेरी जो टीचर है ना, उन्होंने भी बताया था कि जब भी कोई कुत्ता काट ले ना तो उसको ऐसे झाड़ फूक और ये उस पे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, घर पे कुछ स्टिचेस भी नहीं लगाने चाहिए, सीधे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। कुत्ते के काटने के बाद तुरंत जितना जल्दी हो सके 15 मिनट तक साबुन एंड पानी से अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। एंटीसेप्टिक्स का यूज करें, इरिटेंट सब्सटेंसेस का यूज बिल्कुल ना करें। बेयर हैंड से घाव को बिल्कुल ना छुएं और ना ही उसे कवर करें। पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाएं, और अगर सुपरफिशियल स्क्रैचेस हैं तो रेबीज वैक्सीन, और अगर बहुत ही गहरे घाव हैं खून निकलते हुए तो रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यूज किया जाता है। और अपने पेट्स का इम्यूनाइजेशन कराना इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन रेबीज कंट्रोल। मतलब जब पपीज 3 या 4 महीने के होते हैं तो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन होता है, और उसके बाद रेबीज के बूस्टर्स लगते हैं जब पपी 1 साल का हो जाता है, और उसके बाद जब 4 साल का होता है तब। एंड एज पेट ऑनर्स हमें प्रिकॉशन के तौर पे स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। Dogs are definitely our best friends and therefore we need to take best care of them. मम्मी प्लीज मैं इसको रख लूँ ना? ठीक है बेटा, रख लो, लेकिन एक कंडीशन पे, पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, ठीक है? थैंक यू। ये तो हुई हैप्पी एंडिंग, मगर इंडिया को हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए हमें एक बहुत लंबी रेस दौड़नी पड़ेगी। हमें हमारे पपीज़ को इम्यूनाइजेशन करवाना पड़ेगा। वो काट दें तो हर्बल रेमेडीज़, इरिटेंट्स, बैंडेज, सूचरिंग या मैजिकल प्रैक्टिसेस से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट ही हमारी जान ले जाती है। कुत्ते के काटते ही उसे साबुन से धोएं, एंटीसेप्टिक लगाएं और डॉक्टर के पास जाएं। इम्यूनोग्लोबुलिन के शॉट्स लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, पूरा कोर्स कंप्लीट करें, क्योंकि रेबीज़ का सिंगल डॉट वैक्सीन आज तक नहीं बना है। पूरी और प्रॉपर ट्रीटमेंट ही आपकी जान बचा सकती है।